Hey everyone, today we will study about modifications of roots. Roots की modifications क्या होती हैं और वो क्यों होती हैं पहले वो देखते हैं. Roots का basic function होता है water की absorption, mineral की absorption और उसके साथ साथ plant को soil में anchor करना. But sometimes root performs other functions like storage of food or root becomes photosynthetic or green या फिर sometimes roots help in nitrogen fixation for providing extra support to the plant. जब रूट अपने इन बेसिक कामों को छोड़ के इन बेसिक फंक्शंस को छोड़ के कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करती है देन इट हैज टू मॉडिफाई. मतलब मॉडिफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन किस चीज में चेंज होगा? देयर विल बी चेंज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ the root, and when we say form and structure that means there will be change in morphology of root and उसके साथ साथ उसके functions में भी change होता है. that means in there is change in physiology of the root. Modification of the roots is alteration in the morphology and physiology of the roots to perform other functions like storage, photosynthesis और एक्स्ट्रा सपोर्ट. टैप रूट मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स भी मॉडिफाई कर सकती हैं. आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टैप रूट मॉडिफिकेशंस. लेट्स स्टडी टैप रूट मॉडिफिकेशंस. टैप रूट मॉडिफिकेशंस डिफरेंट फंक्शंस के लिए हो सकती हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड या फिर इट कैन बी फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और respiration. Or respiration. So first we will take up storage taproot modifications. Storage taproot modifications are also known as fleshy taproot modifications. Why fleshy taproot? क्योंकि जो टैप रूट है, जो मेन रूट है, वो खाना स्टोर करती है एंड इट बिकम्स फ्लेशी. ओके, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फ्लेशी टैप रूट. डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द रूट्स, किस तरह की शेप लेती है टैप रूट, उसके बेसिस पे फ्लेशी टैप रूट्स 4 तरह की हो सकती हैं. दीज कैन बी कॉनिकल टैप रूट्स, फ्यूजिफॉर्म टैप रूट्स, napiform taproots or tuberous taproots. Study the conical fleshy taproot. It is, as the name is indicating, it is cone-like. बहुत common example है. You must have seen many a times carrot, right? Its scientific name is Daucus carota. अगर आप कैरेट को ध्यान से देखो तो कैरेट इज कोन लाइक, राइट? कोन की तरह होती है. एंड द रेड और ऑरेंजिश पार्ट, वट एवर कैरेट यू हैव सीन, दैट इज बेसिकली द स्वोलन टैप रूट. जो एडिबल पार्ट है कैरेट का, वो क्या होता है? टैप रूट होती है, स्वोलन टैप रूट. और उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का सर्कुलर जो आपको नजर आता है, दैट इज द रिड्यूस्ड स्टेम. वो क्या होती है? reduced stem, and the leaves over that reduced stem are known as radical leaves. इनको बोलते हैं radical leaves. Have you ever noticed कि कैरेट के ऊपर कुछ thin hair like structures होते हैं? And these hair like structures, ये क्या होते हैं basically? कुछ भी नहीं है. These are only the secondary roots as we have discussed in taproots. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, you can watch that. I will link that in description. The next one is fusiform roots. Fusiform roots are spindle shaped. Spindle shaped roots matlab, have you seen this radish? Obviously yes, most of you have seen that, right? The scientific name for radish is Raphanus sativus. फ्यूजिफॉर्म रूट में क्या होता है? जो बेस है रूट का
और एपेक्स दोनों ही टेपर्ड होते हैं, लाइक दिस, द बेस एज वेल एज द, ये बेस और ये एपेक्स, दीज बोथ आर टेपर्ड। ये दोनों कैसे हैं? टेपर्ड है। एंड द सेंट्रल पार्ट इज ब्रॉड। फाइन। The third form is nepiform roots and it is spherical in shape. Shalgam, turnip. Most of you must have seen it as well. Turnip, the scientific name for turnip is Brassica rapa. Turnip कैसा होता है? The base of the root is swollen to form a ball-like structure and इसके ऊपर भी ये reduced stem होती है और radical leaves होते हैं and the apex is completely tapered. It has a ball or sphere-like base and extremely tapered apex. Okay, and the last one is tuberous roots. Tuberous root means that they are irregular in shape. Tuberous roots कैसी होती हैं? Irregular होती हैं shape में, कोई भी shape हो सकती है. It can be any kind of shape. Maybe ये वाली example आपने कहीं कभी ना देखी हो because this is found in Mirabilis jalapa. This is found in Mirabilis jalapa, most commonly known as 4-o'clock plant. The second taproot modifications are nodulated roots. These roots are found in leguminous plants. Leguminous plants जिनका fruit legume होता है, जैसे कि मटर, pea, which is scientifically known as Pisum sativum, or groundnut like Arachis hypogaea. इन प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनमें यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं. अब इन नोड्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? लेट्स मैग्नीफाई वन ऑफ द नोड्यूल एंड सी. अगर हम एक नोड्यूल देखें, इट कंटेन्स मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं. एंड दीज बैक्टीरिया, if you remember, you must have studied in your lower classes, rhizobium leguminosarum. A big name to remember. नई क्लासेस में आके, बड़ी क्लासेस में आके ऐसा लगता है कभी कभी, बट आई विल डू अ वीडियो ऑन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आफ्टर दिस, कि हम साइंटिफिक नाम लिखते कैसे हैं. ओके, ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है, ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी रखता है. ओके, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स फिक्स नहीं कर सकते. ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज nitrogen fixation. We will study that in details when we will study the chapter photosynthesis. Okay, नाइट्रोजन फिक्सेशन से बनते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो प्लांट के लिए यूजफुल होते हैं. तो these nitrogenous compounds are taken up by the plant. Okay, plants take these nitrogenous compounds. In return, प्लांट्स को भी तो कुछ इन बैक्टीरिया को देना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि इनसे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स लिए और बस हो गया, ऐसा नहीं होता. तो प्लांट क्या करता है? प्लांट हैज द एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस. प्लांट कैन प्रिपेयर फूड, राइट? तो प्लांट इन रिटर्न इन बैक्टीरिया को देता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, दैट इज फूड, राइट? एंड along with that it gives it shelter. अब ये नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रह रहे हैं, प्लांट की ही रूट है ना. तो बोथ प्लांट एज वेल एज बैक्टीरिया, दे आर हेल्पिंग ईच अदर. और ये जो फिनोमेना होता है, दिस इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. The next taproot modifications are respiratory roots, also known as pneumatophores. These plants, these trees are found in
swampy areas और marshy areas, जैसे दलदल होती है वैसे areas और marshy areas. And the example for these plants are Avicennia, Soneraceae. अब इन प्लांट्स में एक्चुअली होता क्या है, लेट्स सी. ये मेन ट्रंक है प्लांट की, जो कि स्वैम्प में ऐसे नीचे ये ग्रो कर रहा है, और इसके जो नीचे की रूट्स हैं, दीज ग्रो हॉरिजॉन्टली, ओके. और ये जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं, एट इंटरवल दीज कम अपराइट, ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं स्वैम्प से बाहर निकल के. दैट मीन्स दे बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. कैसी बन जाती हैं ये? दीज बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. हमने पढ़ा रूट्स क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पर न्यूमेटोफोर्स में they become negatively geotropic, and these branches which are coming out are known as pneumatophores. Fine. और pneumatophores में upper part में there are present pore-like structures, and these pore-like structures are known as lenticels or pneumatodes. और इन रेस्पिरेटरी रूट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है टू पिकअप ऑक्सीजन फॉर पर्सपिरेशन ऑफ द रूट्स. वरना दलदल में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है, इसलिए ये रूट्स को स्वैम्प से, दलदल से बाहर आना पड़ता है. ओके, so this was all about the taproot modifications. The next we will study adventitious roots modifications in the next video. Okay, thank you so much for watching.